Hello dear friends, welcome back to my channel Advanced English 101 friends. In today's video we are going to learn 6 advanced English structures, and all these structures are most important for daily use English or daily use conversation. If you are a learner and want to make your English fluent or want to get lots of confidence of speaking English, you have only one way, you have only one option. You have to practice more and more. The more you practice, the more you become fluent. The more you practice, the more you get confidence. The more you practice, the more you become fluent in English. If you don't practice, you can never be able to speak fluent English. Even you are unable to speak English, let alone fluent English. So now let us move on to our today's topic. Our first topic is will not work or help. It means से काम नहीं चलेगा. Will not work or help. What is there to plus verb की फर्स्ट फॉर्म. इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है. स्ट्रक्चर है व्हाट इज देयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस विल नॉट प्लस हेल्प और वर्क. पहला सेंटेंस है, इसमें हंसने वाली क्या बात है. इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज देयर टू लाफ. व्हाट इज देयर टू लाफ. केवल हंसने से यहाँ काम नहीं चलेगा. ओनली लाफिंग विल नॉट हेल्प और वर्क हेयर. यहाँ आपको अपनी हुनर या कुशलता का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा. यू विल हैव गॉट टू शो योर टैलेंट हेयर. You will have got to show your or display your talent here. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें गुस्से से आग बबूला होने वाली कौन सी बात है. इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज देयर टू बॉयल ओवर विद रेज. तुम यहाँ काम करने आए हो. अगर तुम इसी तरह से काम से जी चोरी करते रहोगे तो ऐसा यहाँ नहीं चलेगा. इसके लिए हम लोग कहेंगे यू हैव कम हियर टू वर्क and you will keep shirking like this, it will not help or work here. उसके बाद हम लोग कहेंगे you had better mend your ways. बेहतर होगा कि तुम सुधर जाओ. It would be better या it had better you would mend your ways. केवल बच्चों को रुलाने से काम नहीं चलेगा. Just making kids cry not help or work. केवल लिखाई से काम नहीं चलेगा. ओनली राइटिंग विल नॉट हेल्प. अगर सच में आप धारापूर्वक अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू विल हैव टू प्रैक्टिस. If really you are also one of those aspirants who want to learn speak English, only writing will not help or work. The top chapters in loud voice again and again. Want to speak English fluently? Only writing will not help or work if really. Otherwise, you don't have any other way. You are also one of those aspirants who want to learn to speak English. You will have got to revise the top chapters in loud voice. The more you practice, the more you become fluent. The more you practice, the more you get confidence of speaking English. If you don't practice, that means you are just wasting your time. You are just keep dreaming. But in reality, you are unable to speak even a single sentence. You have only one option. If you want to become a fluent English speaker, you will have to practice more and more. नेक्स्ट सेंटेंस इस केवल हिंदी बोलने से काम नहीं चलेगा. एक सरकारी अधिकारी बनने के बाद आपको न्यूज रिपोर्टरों के सामने अंग्रेजी भी बोलनी पड़ेगी. ओनली स्पीकिंग हिंदी विल नॉट वर्क. इफ You will also have to speak in English in front of news reporters after becoming a government officer. If you find this video helpful for you, you must write in the comment box about this video. How did you find this video? How did you like this video? नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, जब भी कहना हो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ. किसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल आई कैन से इज दैट. उसके बाद हमारा सेंटेंस
अपने अंदाज में अपने ज़रूरत के अनुसार सेंटेंस होगा। और आई कैन से इज़ दैट, उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। हमारा कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज़ मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम लोगों को सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि काम बिगड़ जाए। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल आई कैन से इज दैट यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, अदरवाइज द वर्क गेट्स स्पॉइल्ड इन अ हरी। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारे भाई ने अगर चोरी की है तो उसे सज़ा भी ज़रूर मिलनी चाहिए। ऑल आई कैन से इज दैट इफ़ योर ब्रदर हैज़ स्टोलन देन ही मस्ट बी पनिश्ड। यहाँ पे देन की जगह पे आप कॉमा लगा सकते हैं। कॉमा देंगे तो देन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हम लोग हर छोटी मोटी बात पर झगड़ा ना करें। ऑल आई कैन से इज दैट यू डोंट क्वारल। आप लोग हर छोटी मोटी बात पर झगड़ा ना करें। ऑल आई कैन से इज दैट यू डोंट क्वारल ऑन एवरी पेटी और ट्रिवियल मैटर। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इधर उधर बैठकर समय की बर्बादी करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ऑल आई कैन से इज दैट फोकस ऑन योर स्टडी इंस्टेड ऑफ सिटिंग हेयर एंड देयर। यहाँ पे इंस्टेड में आई एन के बाद कोई खाली स्पेस नहीं होना चाहिए, जो मैंने छोड़ रखा है, मेरी गलती है। INSTEAD सिंगल वर्ड है। मैं एक शिक्षित होने के नाते बस इतना कह सकता हूँ कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आपको दिन रात पूरे मन से पढ़ाई करनी चाहिए। बीइंग अ टीचर, ऑल आई कैन से इज दैट यू शुड स्टडी wholeheartedly round the clock to make your future bright. Dear friends, if you find this video helpful for you, don't forget to press the like, subscribe and share button. Even if next structure is even if, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भले ही। Even if प्लस फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस हमारा होगा, या फिर हम लोग यूँ बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस है भले ही तुम मुझे भूल जाओ पर मैं तो तुम्हें याद करता रहूँगा। इवन इफ़ यू फॉरगेट मी आई विल बी रिमेम्बरिंग यू। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इवन इफ़ यू फॉरगेट मी आई विल कीप रिमेम्बरिंग यू। भले ही कोई उसकी अंतिम यात्रा में जाए ना जाए, मैं तो ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक ना एक दिन सभी को मरना है, नो मैटर। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नो मैटर इफ़ नो वन अटेंड्स हिज लास्ट जर्नी आई विल सर्टेनली गो। या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं आई विल सर्टेनली गो इवन इफ नो वन अटेंड्स हिज लास्ट जर्नी, बिकॉज आई नो दैट everyone has to go to the next world or everyone has to die one day or the other. मैं तो तुम्हारे बारे में सोचता रहूँगा भले ही तुम मेरे बारे में कुछ ना सोचो। आई विल कीप थिंकिंग अबाउट यू इवन इफ यू डोंट थिंक अबाउट मी। भले ही तुम मुझसे झूठ बोलो, सच क्या है मैं भी जानता हूँ। Even if you tell a lie to me, I too know what the truth is. नेक्स्ट हमारा है वेदर और नॉट। जब भी कहना हो तुम जाओ या ना जाओ, तुम खाओ या ना खाओ, वह हंसे या ना हंसे, वह जिए या मरे, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए वेदर और नॉट का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है वेदर प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस और नॉट प्लस सेकेंड सेंटेंस। पहला सेंटेंस है तुम उसके घर उससे मिलने जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगा ही। वेदर यू गो टू हिज हाउस टू मीट हिम और नॉट, आई विल सर्टेनली गो, आई विल श्योरली गो, आई विल डेफिनेटली गो। वह पढ़े या ना पढ़े उससे मुझे क्या। What does it matter to me whether he studies or not? या फिर हम लोग यूँ बोल सकते हैं what to me whether he studies or not.
चाहे तुम उसके डर से कहीं भी चले जाओ, लेकिन वह तुम्हारे साथ, तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। Whether you go anywhere for fear of him, उसके डर से तुम चाहे कहीं भी चले जाओ। Whether you go anywhere for fear of him, but he will be with like your shadow, लेकिन वह तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई की तरह रहेगा। Whether you go anywhere for fear of him, but he will with like your shadow, चाहे वह मुझे पसंद करे या ना करे, whether he likes me or not, लेकिन मैंने तो उसे अपना जीवन साथी बनाने का संकल्प ले लिया है। But I have taken a resolution to make her my life companion. Whether she likes me or not, but I have taken a resolution to make her my life companion. प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हक में बेहतर होगा। The more you practice, the more it would be better in part of you. In the part of you. In the part of का मतलब होता है के हक में। What to plus me, you, him, her, इसका मतलब होता है मुझे क्या, उसे क्या, तुम्हें क्या। उसे क्या, मैं कहीं भी किसी के साथ भी जाऊं। What to you, what does it matter to you? उसे क्या, मैं जीऊं या मरूं। What to him, whether I live or die. What to him, whether I live or die. उसे क्या, मैं तुम्हारे साथ चाहे डांस करूं या गाना गाऊं। What to him, whether I dance or sing a song with you. What to him, whether I sing or dance with you. नेक्स्ट है on the one hand, जिसका मतलब होता है एक तरफ। on the other hand, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। एक तरफ तो वे लोग मुझे बुरी तरह मारते पीटते हैं और दूसरी तरफ मुझे अपना हमदर्दी दिखाते हैं। On the one hand, they beat me badly, and on the other hand, they show their sympathy for me. एक तरफ तो लोग अमीर होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ भीख मांगते हैं। On the one hand, they talk about to be a rich, and on the other hand, they beg alms. एक तरफ तो तुम लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और दूसरी तरफ एक लायक बेटा होने का दावा करते हैं। On the one hand, you don't respect your parents, and on the other hand, you claim to be a worthy son. क्लेम का मतलब दावा करना। यहाँ पे पेरेंट्स के बाद स्पेस थोड़ा सा छूटना चाहिए था, स्पेस नहीं छूटा है, इसके लिए आई एम सॉरी। एक तरह से तुम ईमानदार होने का दावा करते हो और दूसरी तरफ बेईमानी करते हो। दूसरी तरफ बेईमानी करते हो। एक तरफ तो तुम ईमानदार होने का दावा करते हो और दूसरी तरफ बेईमानी करते हो। ऑन द वन हैंड यू क्लेम टू बी ऑनेस्ट, एंड ऑन द अदर हैंड यू डू डिसऑनेस्टी। एक तरफ तो दुश्मनी की बात करते हो और दूसरी तरफ उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो। ऑन द फर्स्ट हैंड यू टॉक ऑफ एनमिटी, एंड ऑन द अदर हैंड यू एक्सटेंड योर हैंड फॉर फ्रेंडशिप। एक तरफ तो तुम खुद को गरीब बताते हो और दूसरी तरफ फ्लैट खरीदने की बात करते हो। ऑन द वन हैंड यू टेल टू योरसेल्फ अ पुअर, एंड ऑन द अदर हैंड यू टॉक टू बाई अ फ्लैट। और ऑन द अदर हैंड यू टॉक टू बाई अ फ्लैट, और दूसरी ओर तुम फ्लैट खरीदने की बात करते हो। नेक्स्ट है हमारा बाउंड टू। बाउंड टू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्पोकन इंग्लिश के लिए। ये कभी काम करता है मजबूरी दर्शाने के लिए, निश्चितता का तय होने के लिए ये बाउंड टू का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मजबूर हूँ। आई एम बाउंड टू कंटिन्यू माई फर्दर एजुकेशन।
स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बाउंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्लासरूम में हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर हैं। मजबूर हैं मतलब बाध्य है, हमें इंग्लिश बोलना ही है। इन द क्लासरूम वी आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश। इन द क्लासरूम वी आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश। वे लोग बहुत गरीब परिवार से हैं और वे लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। दे बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली एंड दे आर बाउंड टू स्टे हंग्री। दे आर बाउंड टू स्टे हंग्री। वे लोग भूखे रहने को मजबूर हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हम लोग मजदूर हैं और हम लोग कठिन परिश्रम करने को मजबूर हैं। वी आर लेबरर्स एंड वी आर बाउंड टू डू हार्ड वर्क। वी आर लेबरर्स एंड वी आर बाउंड टू डू हार्ड वर्क। तुम उसकी हर बातों का जवाब देने को मजबूर थे। यू आर बाउंड to answer his every words. You were bound to answer his every words. Dear friends, if you found this video helpful for you, you must write in the comment box. आज आप लोग इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर हैं। Today you are bound to speak English. Today you are bound to speak English. वह अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने को मजबूर है। He is bound to get married against his desire, against his will, against his desire, against his wish, against his desire. नेक्स्ट है हमारा नो अदर वे बट। के सिवाय कोई चारा नहीं था। के सिवाय कोई उपाय नहीं था। हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो तो नो अदर वे बट का यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो अदर वे बट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नाउन, उसके बाद अदर वर्ड्स। मैं कर्ज में डूबा हुआ था और कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचने के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। आई वॉज डेप्ट रिडन एंड आई हैड नो अदर वे टू सेल द हाउस। टू सेल द हाउस या टू सेल माई हाउस। एक बार की बात है, हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे और हम लोग को बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी और उस समय हम लोगों के पास गंदा पानी पीने के सिवाय कोई उपाय नहीं था या उपाय नहीं था। इसके लिए हम लोग कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम वी वर गोइंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट एंड वी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी. That time we had no other way but to drink dirty water there. इस तरह के सेंटेंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आएगा। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें। यहाँ लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और मेरे पास यहाँ रुकने के सिवा और कोई चारा नहीं है। It has been raining here continuously for last 2 days and I have no other way but to stay here. यहाँ पे बट का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में कोई ज़रूरी नहीं है। चोर को जेल भेजने के सिवाय कोई चारा नहीं था। There was no other way बट टू सेंड द थीफ टू जेल, या फिर यूँ बोल सकते हैं देयर वाज नो अदर वे टू सेंड द थीफ टू जेल। बोथ स्ट्रक्चर आर करेक्ट, राइट। मेरे पास उसे पीटने के सिवाय कोई उपाय नहीं था। आई हैड नो अदर वे बट टू बीट हिम, या फिर यूँ कहें आई हैड नो अदर वे टू बीट हिम। आई हैड नो अदर वे to beat him. I had no other way but to beat him. वहाँ चुप रहने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। There was no other way to be silent there.
या फिर यूं कहें देयर वॉज नो अदर वे बट टू बी साइलेंट देयर। लॉकडाउन के दौरान लोगों के पास घर पर रहने के सिवाय कोई चारा नहीं था। पीपल हैड नो अदर वे टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। पीपल हैड नो अदर वे बट टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, ऐसा भी बोला जा सकता है। बट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बट ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा। उससे शादी करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उससे शादी कर लिया। देयर वॉज नो अदर वे बट टू मैरी हर, सो आई गॉट मैरिड हर। सो आई गॉट मैरिड हर, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली या कर लिया। देयर वॉज नो अदर वे टू मैरी हर, सो आई गॉट मैरिड हर। नेक्स्ट हमारा गेट इनटू समवन्स मैस का मतलब होता है किसी के लफड़े में पड़ना, किसी के झंझट में पड़ना, किसी के झगड़े में पड़ना, किसी के लफड़े में पड़ना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट इनटू अ मैस प्लस अदर वर्ड्स। किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, वन शुड नॉट गेट इनटू एनीवन्स मैस, क्योंकि यहाँ पे वन का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। One should not get into anyone's mess. तुम्हें किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। You should not mess into anyone's You should not get into anyone's mess. तुम्हें किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। You should not get into anyone's mess. तुम्हें किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ये तुम्हारी आदत बन गई है कि तुम किसी के भी लफड़े में पड़ जाते हो। It has become your habit to get into anyone's mess. It has become your habit to get into anyone's mess. तुम बेमतलब उसके लफड़े में क्यों पड़ रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो। Why are you getting into his mess for no reason? You mind your own business. तुम अपने काम से काम रखो, अपने काम से मतलब रखो। You mind your own business. तुम इस लफड़े में बार बार क्यों पड़ जाते हो? Why do you get into this mess again and again? I don't understand. मुझे तो समझ नहीं आता। I don't understand.